गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो अब हम लोग आज उससे आगे की कहानी चलते हैं। ठीक है, वी डिड टिल दिस किरचॉफ्स लॉज, यस और नो? वी कंप्लीटेड किरचॉफ्स लॉज ओनली ना, यस सर। दैट डे? यस सर। ठीक है, चलो ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स को फटाफट लिखो। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे आज, एनर्जी करेंगे और काम खत्म करेंगे अपना डाइलेक्ट्रिक के साथ। ये भी लिख डालो साथ के साथ, कोई टाइम बर्बाद नहीं करो। ठीक है, राइट इट। वंस यू आर डन, टाइप डन इन द कमेंट विंडो। हाँ, हो गया। सर सिर्फ एनर्जी स्टोर लिखना है या डाइलेक्ट्रिक्स भी लिखना है? इलेक्ट्रिक भी लिख के खत्म करो ना, एक ही बार लिखो, अब फिर ओके। पढ़ाता हूँ मैं तुम्हें लाइन से। हाँ ओके सर। मेरा काम खत्म, अपना काम खत्म कर लो, मेरा काम बचेगा फिर। हम ज्वाइनिंग इन 2 मिनट्स। हाँ, तुम लोग लिखो जब तक। चलो, हो गया सबका लगता है। बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा, काम पे लगो।
So we'll be learning about series and parallel combination of capacitors. Remember the rules or not? The batteries are electrically neutral. And second one was, what was the second one? Any one of you? Manasvi, what was the second one? Sir, the charges are isolated plates. No, charges cannot be isolated plates. The charges are conserved in the isolated Charges are plate. conserved. Oh yeah, sorry. Yeah. ठीक है? So let's learn series and parallel combination of capacitors. अरे नहीं. देखो, इफ यू हैव वॉच द वीडियो, उसमें तुमको सब दिखाई देगा. ये सब बनाया हुआ है मैंने वहां. ठीक है? वी विल I'll help you solve a problem based on that. So that will make प्रॉब्लम करवाऊं या डेरिवेशन करवाऊं इसका? क्या बोलते हो? चलो सब कर. डेरिवेशन करवाना है. अच्छा, तुम मतलब वीडियो नहीं देखा ना तूने? शरण्या, टाइम नहीं मिलता है. सबसे बिजी है शरण्या हमारी. कोई बात नहीं. तो देखो, these two capacitors has to be replaced by a single capacitor having the same capacity as these two of them, right? Which can, the single capacitor can extract the same amount of charge which these two can together, right? So effectively capacitance किसके across निकालना है? Equivalent capacitance निकालना है इन इसके across, PQ के across. So the first thing which you will do is you will connect the PQ to the battery having potential difference V, right? This is C1 and C2. What will happen? The battery will supply a plus Q charge, the negative plate will supply a minus Q charge. ये जब plus Q यहाँ आएगा, ये यहाँ plus Q होगा, यहाँ minus Q होगा, यहाँ plus Q होगा, यहाँ minus Q होगा. Now go for the Kirchhoff's voltage law in this loop. So when you go for the Kirchhoff's voltage law in this loop, it's V minus Q by C1 minus Q by C2 is equal to 0. अंजलि समझ आ रहा है बेटा? Q times 1 by C1 plus 1 by C2. समीक्षा दास चौधरी जी, समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. So this is Q times, compare it with the standard equation of Q times 1 upon C equivalent, right? You get 1 upon C equivalent as what? It's 1 by C1 plus 1 by C2. This is how the series capacitors are added. इसमें और क्या क्या है देखो, इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखनी है. Charges, first is charges are same in each capacitor when they are in series, right? When they are connected in series. ठीक है? सेकेंड स्टेप क्या है? स्टेप क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है, द पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द C1 V1. हाँ, द पोटेंशियल डिफरेंस the potential difference gets divided in the inverse ratio of the charge, of the capacitance, right? So how will you do that? यहाँ क्या पता चला इससे तुमको? देखो ध्यान से. यहाँ पे if you see the potential difference across these two plates of the capacitors, what is that? Since the charge remains constant, तो क्या हो जाएगा? C1 V1 is equal to C2 V2, right? So C1 upon C2 is what? It gives us V2 upon V1. क्लियर है बच्चों? सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा?
And also V1 plus V2 is the potential difference across the two terminals PQ, right? So if you want to write what is V1, it is, if you want to write what is V1, it's C2 V upon C1 plus C2. And what is V2? It's C1 V upon C1 plus C2. बोलो, समझ आया नहीं आया? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। ठीक है, इसको छापो 1 मिनट के अंदर, जल्दी से कॉपी पेस्ट। चलो, हाँ भाई, once you are done, just type done in the comment window. Shrija says done. Anybody else? लिखना है ना, जल्दी से लिखो, बताओ मेरे को, लिख लिया हमने, आगे बढ़ेंगे अपन। फटाफट काम करना है, आज खत्म करना है मुझे ये। डन सर। डन सर। चल, so now this was the series combination, ठीक है? Let's see the parallel one. इसमें देखो क्या होता है। इसमें two capacitors are connected end to end, मतलब end to end, सॉरी, प्लेट टू प्लेट। हाँ, यहाँ पर their end terminals are connected, और यहाँ पर these are the points across which we want to find the total capacitance of the capacitors C1 and C2. क्या करेंगे? The first thing which we need to do is connect it with a battery of EMF V and potential EMF V and potential difference across the terminals as V. So V is there, okay. And यहां से देखो क्या आया, ये प्लस ये माइनस, यहां से प्लस क्यू गया, यहां से ये माइनस क्यू गया। तो अब जब ये प्लस क्यू यहां पर आएगा तो both the capacitors have different capacities, right? Both the capacitors have different capacities, and they will take the charges according to their own capacity. यहाँ पे ये पिंक स्पॉट पे आके they will split according to the capacity of each one of them. They will take the capacitor, sorry, they will take the charges. Now you need to write Kirchhoff's voltage law for this outer loop and Kirchhoff's voltage law for this inner loop. ठीक, तो देखो क्या लिखोगे। For the outer loop it is V minus Q1 upon C1 is equal to 0. From here I get Q1 as what? VC1. And for the lower loop it is V minus Q2 by C2 is equal to 0. From here I get Q2 is equal to what? VC2. Now the total charge is what? Q is what? It's Q1 plus Q2. So can you see here that we can write it as V times C1 plus C2. So if you compare it with the standard equation of VC equivalents, we get C equivalent as what? C1 plus C2. समझ आया नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? सब बताओ जल्दी से। This is the equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in parallel. Number one. Number two. अब what about the charges? The charges are in the direct ratio of the capacitance, right? So the charges are in the direct ratio of the capacitance. So if you know the total charge extracted by these two capacitors,
we can write the individual charges as what? It's QC1 upon C1 plus C2, and Q2 will be equal to QC2 upon C1 plus C2. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes, भाई sir. सुन लो, एक बात सुन लो बच्चों, किसी को कोई भी डाउट होता है ना कि सर अच्छा कोई डेढ़ होशियारी की जरूरत नहीं है सर, ये मैं बाद में देख लूंगी, हो ही जाएगा, ये तो अच्छा डायरेक्ट रेशियो है, मैं बाद में कैलकुलेट कर लूँ ना, अभी करके जाना है, यहीं से खत्म करना है इसको, बात के लिए नहीं बचाना है। समझ आया नहीं आया? हेलो हेलो हेलो। जी सर। हाँ लिखिए, 1 मिनट का टाइम है, लिख लोगे तो डन लिखना है आगे। अंजलि को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विवान यस और सर। कौन Yes, कौन sir. आया? श्रीजा दास, Yes, sir. ओके। मुक्ता समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. गुड। हाँ भाई, डन। चलो शाबाश, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब चलो इस पे ना एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो तुम लोग, आ जाओ जरा। इसी में तुम्हें मैं सिमेट्रिकल सर्किट का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ जिसमें सीरीज पैरेलल सब काम आ जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिकल सर्किट्स, नाउ सी व्हाट हैपेंस इन सिमेट्रिकल सर्किट्स। दो टाइप का सिमेट्रिकल सर्किट होगा, एक होगा प्लेनर सिमेट्री, दूसरा होगा तुम्हारा 3 डायमेंशनल सिमेट्री, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट प्लेनर सिमेट्री, सॉरी प्लेनर सर्किट्स। फॉर दिस, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू नीड टू रिमेंबर इज, in planar circuits the important point which you need to remember is the line of symmetry, or write it like this: all the points lying on the line of symmetry are equipotential points.
ठीक है, all the points lying on the line of symmetry are equipotential points. This is what you need to remember while solving the circuit based on symmetry. Okay, so let's see this and check. I'm just drawing it with a light color. ये हेक्सागन टाइप का दिख रहा है मुझे ऐसे, बट तुमको ना लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे हेक्सागन दिखाना है। ठीक है, सो दिस इज अ हेक्सागनल अरेंजमेंट एंड दिस इज द सेंटर ऑफ इट, राइट? हाँ भाई, नाउ सी, there are capacitors on every branch of this, right, of this circuit. So these are the capacitors on every branch of it. This is capacitor 1, this is capacitor 2, this is capacitor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. All the capacitors are of value C. किसी को डाउट है तो पूछो, कोई 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 क्वेरी है किसी की? All the capacitors are all of equal values, right? Equal capacity. Now we want to find the capacitance between these 2 points A and B. The yellow lines are the connecting circuits, right? तो अगर तुम्हें येलो लाइन से परेशानी है तो ये बना लो। क्वेश्चन समझ आया सबको? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया, बताएं जल्दी से। हेलो, यस सर। चलिए आइए। Now, first of all, what you need to do is find a line of symmetry here. The first thing which you need to do is find the line of symmetry. क्या करोगे बताओ? So which is the line of symmetry? से वर्टिकल लाइन। हाँ, चलो मान लेते हैं वर्टिकल लाइन है। So this line is the line of symmetry. All of you agree to this or not? Or there are many lines of symmetry here. ये भी line of symmetry हो सकता है, ये भी line of symmetry है, ये भी line of symmetry है। How many lines of symmetry are here? Hello. Are there many lines or there is only one line here? मेनी लाइन्स। Many lines? Sure. Many lines. Many lines. One. केसरवानी जी बताइए क्यों वन है यहाँ पर? Why you are calling? ए एंड बी के रिस्पेक्ट में बोलना है हमें। Very good. So now, those of you who said many lines, please pay attention. You need to think that you have to say this symmetrical lines with respect to A and B, the terminals across which you want to find the equivalent capacitance, right? So when you take this mirror image of left hand side, the right hand side should be an exact mirror image. So the terminal should also be the mirror images of each other. Or another way to look into it is when you fold the circuit, every component should find a complementary component on the other side of it, right? And every terminal should find a complementary terminal on the other side of it. I hope you understood this. Hello. Yes sir. So here Yes, we sir. have these are overlapping, these are overlapping, right? These are overlapping. ये भी ओवरलैप कर रहा है, ये भी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, पर इन दोनों का क्या? तो इन दोनों में थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो अब क्या करना होगा वो सीखो, ठीक है? सो दे विल ओवरलैप, बट व्हाट वी विल डू फॉर दीज टू इज if you have done some questions based on capacitors or based on the formula of capacitors,
when you divide a capacitor into when you split it into two equal halves from the distance between the plates, if you make it d by 2, what will happen? The capacity of the capacitor increases. When you reduce the distance between the plates by half, the capacity increases by 2. All of you can see that, right? So now here what you do is replace these two by these two simple capacitors. And the value of these two capacitors is what? The capacitance of these two capacitors is 2C and 2C. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. The capacitance between these two terminals is not changing. यहाँ पे इन दोनों के टर्मिनल्स के अक्रॉस कैपेसिटेंस चेंज नहीं कर रहा है. 2C मिलके क्या हो जाएगा? 1 by these two are in series, right? 2C and 2C. So since they are in series, the equivalent will be what? 1 by 2C plus 1 by 2C gives us what? 1 by C. समझ आया नहीं आया? Hello, hello, hello. Pawan, Yes, sir. Keshav, you understood? Pawan, Anjali, Mukta, Samiksha, Sanvi. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, शाबाश. सेम यू डू द सेम थिंग हियर ऑल्सो. यहाँ पे भी करिए. ठीक है, ये 2C और ये 2C. अब देखो कितना बढ़िया हो गया ये काम इसका. ये पॉइंट और ये पॉइंट, ऑल दीज पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स. यस और नो? Yes, sir. एंड इस पॉइंट को भी एक पोटेंशियल इसका भी होगा कुछ अलग से. ठीक है, इसका भी होगा कुछ अलग से और इसका भी होगा कुछ अलग से. तो ऑल दिस पर pink color points and a point A, we will draw it. We will draw the circuit between all these points, right? So let's name these points as O. तो इसका पॉइंट हो गया O, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और A. तो देखो O और 1 के बीच में, so let's plot this point as 1 here, right? फिर 2 यहां पर है, ठीक है, फिर 3 यहां पर है. ठीक है, दोबारा प्लॉट करते हैं इसको. 1 और O के बीच में एक कैपेसिटर है ये C का, दूसरा कैपेसिटर है ये 2C का. So there are two capacitors between 1 and O, and this is 2C and C. I hope you understood. Yes or no? Between 1 and 2, this is C. Between 2 and O, it is C. See? Between 2 and 3, it is C. Right? And between O and 3, it is again C and 2C in parallel. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. और ये तुमको मिल गया. अब पहले इसी को कैलकुलेट कर लो. अब देखो सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं. फॉर्मूला, ये दोनों पैरेलल है, हाँ या ना? सब लोग बताएंगे जल्दी से. Yes, sir. Yes, sir. पैरेलल. एक मिनट रुको यार, इसको छोटा करते हैं, जगह बनाते हैं यहाँ पर. हाँ ठीक है. So these two are in parallel, right? So this becomes what? 3C. और ये दोनों भी पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 2C. पर ये दोनों मिलके, सॉरी, ये 3C हो जाएगा, ये भी सॉरी है. दिस इज 3C. नाउ अगेन रीड्रॉ इट. मैं ये इसलिए रीड्रॉ कर रहा हूं ताकि तुम ना बाद में तुमको घपला नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में ये. और इसके बाद नहीं करेंगे अपन ये सब कचरा काम. सी, दिस इज 3C, this is C, this is point 1, this is point 2, this is point O. ओके. और इधर देखो, इधर क्या है? इधर है ये C और इधर है ये 3C. पर यहां पर टर्मिनल निकला हुआ है. सो दिस इज A और point 3. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. यस और नो? Yes, sir. अब आइए इन दोनों को देखिए. ये दोनों मिलके हो जाएंगे 3C/4. दे आर इन सीरीज. And then these two green colored ones are in parallel with this C. Yes or no? बोलो भाई हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. So 3C/4 plus C gives me what? The purple color is now 7C/4. क्लियर है भाई सबको? हेलो हेलो. Yes, sir. और ये पर्पल वाला जो है, ये पर्पल वाला जो है, ये सीरीज में है किसके साथ?
ये सीरीज में है इस सी के साथ, देखो, हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. तो 7c/4 और सी, हेलो, बाकी सबको समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? So can you explain that series अरे is not in अच्छा, parallel? ये भूल जाओ इसको, चलो। कितना था ये प्रणव? दिस इज 7c/4, राइट? Yeah, दिस इज 7c/4, राइट? yeah, Replace it by a 7c/4 thing here. You see this? yes. Now is it in series with this or not? इसके साथ Four. सीरीज में है कि नहीं है? Okay, yeah. ठीक है। Yes, sir. So 7c/4 is in series with C. So one doubt, if potential like remains same, then they're in parallel or something, right? हाँ, When this, but not anywhere, huh? The terminal should also be connected between them. oh, okay, yeah, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सर्किट के एक कोने में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया, दूसरे कोने में 2 वोल्ट का, तो उन दोनों को हम पैरेलल जोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। ठीक है। yes, sir. हम्म चलो आ जाओ अब। तो दिस 7c/4 is in series with this C. So this is what 7c/4 into C upon 7c/4 plus C. This is C equivalent, right? So this is 7c/11. ये कहाँ का है? C equivalent नहीं है, इसको C dash लिखो, सॉरी, this is C dash, right? Now, so this is 7c/11. अरे नहीं, अब देखो बच्चों, ये देखो, ये पूरा गया, ठीक है, और ये हट गया यहां से, इसको भी हटा दो आप। एंड व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज इन बिटवीन दीज टू? 7c/11, देखो, हाँ या ना? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. नाउ दीज Yes, टू आर sir. इन पैरेलल, यस और नो? प्रणव, प्रणव, पवन, Yes, sir. समीक्षा, सानवी, अंजलि, मुक्ता। Yes, Yes, sir. sir. So this is 7c/11 plus 3c. This is what? 40c/11. Clear? Ab this is one half of the capacitance. The other half is also 40c/11. And they are in series. So now we have the C equivalent as half of these, half of any one of these two. So it is 20c/11. Hello. ठीक है? Yes, Yes. sir. So sometimes in like big questions like this, I get confused where to like consider series and parallels. सिंपल है, सीरीज में कोई बाइफर्केशन नहीं होता है बीच में। सीरीज में कुछ भी, ये कहीं से भी ले आओ, इसको यहाँ 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 घुमा लो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। एंड यहाँ पे है, ये है, देर इज नो ब्रांचिंग इन बिटवीन दीज टू Yes, yes. कैपेसिटर्स, ठीक है, Yeah. देन दीज टू आर इन सीरीज। So अगर एक भी sometimes ब्रांच यहाँ बाहर निकल गया तो ये खत्म हो गया। in गॉट इट? these triangle questions, I don't know like which two to consider series and बताया how तो अभी, to. तेरे को ढूंढना ऐसे ही है तेरे को। अभी यहाँ देख, यहाँ तेरे को कैसे पता चलेगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, बता। यहाँ पर इन दिस पार्ट ऑफ द सर्किट, टेल मी विच आर इन सीरीज एंड विच आर इन पैरेलल। सिंपल दिख रहा है ना सामने यहाँ पर। When these Yeah, two will merge together, they will be in series with this one. yeah, That's it. ये देखते देखते आता है, देखो, शुरू में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, these are new yes, things to you. सबसे बड़ा yes, चैलेंज फिजिक्स के साथ ये है कि इसमें हर चैप्टर नया दिखता है, एक्सेप्ट फॉर yes, लॉज ऑफ मोशन और शुरू में काइनेमैटिक्स, बाकी सब। ऑप्टिक्स थोड़ा सा, वो ऑप्टिक्स भी मजाक है, वो मतलब जो पहले पढ़ के आते हो तुम लोग, वो मजाक है वो। एनीवेज छोड़ो इसको। लिख लिया ये तुम लोगों ने? बताओ भाई जल्दी से, हेलो हेलो हेलो। yes. हाँ, sir. लिख लिया?
चले Not आगे। stop. 2 minutes. कौन लिख रहा है? हुआ तो कि नहीं प्रणव। हुआ कि चलूं आगे? अरे यार हाँ ना नहीं बोलते तुम लोग। प्रणव हो गया Sir, बेटा? 1 minute. अच्छा मिनट बोला ना तुम लोगों ने, हाँ मुझे 1 minute. सुनाई दिया, हो गया। लिखो लिखो, जब हो जाए तो लिखो डन। नहीं भागेंगे, चिंता मत करो, अगली क्लास भी एक क्लास और लगा लेंगे। हमारे पास बहुत टाइम है, इसलिए चिंता मत करो, अगस्त तक तुम्हारा सिलेबस 12th का ये दो दो क्लास में ही खत्म हो जाएगा। अभी मेरे पास मई जून जुलाई है, 3 महीना बहुत होता है ये। 24 सेशन बहुत है 12वीं खत्म करने के लिए। थ्योरी पढ़ा खत्म कर सकते हैं इसमें। अच्छा तुम लोग टेस्ट लिख रहे हो कि नहीं आज क्लास के बाद रुको जरा, सब 5 मिनट एक्स्ट्रा। आज तुम्हारी क्लास लगाऊंगा मैं। अच्छा जिन लोगों ने कर लिया है, ऑल ऑफ यू नाउ डू दिस। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग अभी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए बी। ठीक है, करो। सेम अरेंजमेंट, हाँ। You have exactly 3 to 4 minutes to do it. Please do it, including copying the content also.
So this was the easiest one. Yes or no? How many of you got your answers here? Any one of you Yes, who? sir. शरण्या को मिला, बाकी सब कौन क्या कर रहे हैं भाई? अंजलि हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा है अंजलि जी? Sir, I'm doing, sir. करो 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 करो। मनस्वी, अंजलि, प्रणव, ईशानी, समीक्षा, मुक्ता, श्रीजा, पवन। See, the line of symmetry will be the same. Now this will be not there, right? This is how the entire circuit looks like. This is B and ठीक है, B लिख लो इसको, और क्या है? Right. So this is 3C by 4, 3C by 4. All these, add all these in parallel. So it is 3C by 2 plus C. So this is 5C by 2 in series with 5C by 2. And this is CAB is what? It is 5C by 4 in parallel. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. So Hmm. one. Yes, sir. Sir. चलो शाबाश। कोई और है जिसको कुछ पूछना है? Sir, I didn't get. Can you explain? सुनाई नहीं दे रहा है भाई, जो जो कोई भी है जो बोल रहा है, मेरे को कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। I didn't get it. कौन हो तुम? Sir, I'm Pranav. Which part you didn't get, Pranav? So like there are other two capacitors right there, like Where? on the line, the Where? line perpendicular to that pink line. There are no capacitors. So like Where can you see those? See, these are the two C and C. These are the two ones, right? Hello? yes, sir. अच्छा, एक और है ना यार। हाँ हाँ Yeah. हाँ हाँ हाँ। 2C, 3C हुआ। ये गलत किया ना मैंने? नहीं नहीं, मैंने ये इसको गलत लिख दिया, बाकी आंसर ठीक है। ये दिस इज 3C, राइट? Oh yeah, they both are in parallel, right? हाँ Those हाँ, that दे two आर इन C. पैरेलल, सो दैट इज Yeah. 3C। एक्चुअली वहां 2C गलत लिख दिया था मैंने, बाकी सब ठीक है। This is 3C in series with C, right? So these two are in series. And that is in parallel with the. Remove this one. Yeah. This is parallel वाला है ये, ठीक है? Then they are in series, right? Then again all these are in parallel. कौन कौन सा? ये वाला and ये वाला, all these are in parallel. ठीक है? Yes, sir. Got it. चलो अब आ जाओ तुम्हारा 3 डायमेंशनल सर्किट्स। ये मैं तुमको वहां नहीं सिखाऊंगा, हाँ? रेजिस्टेंस में आई विल नॉट टेल यू दिस पार्ट ऑफ द सर्किट सॉल्विंग। वी आर ऑलरेडी डूइंग इट हियर, आई विल नॉट डू इट देयर। सो 3 डायमेंशनल सर्किट्स देखो, इसमें क्या होता है? So we have a 3 dimensional circuit here. Okay. Right. And ये क्या कर रहा हूं मैं? डाई क्यों बनाया मैंने?
ये सब नहीं बनाना है भाई, ये यूजलेस। मैं वेक्टर याद आ गया था मुझे। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हो गया, ठीक है। अब देखो, हर एक ब्रांच पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। 1, अरे हट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हर एक ब्रांच पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। क्लियर है सबको? हेलो। अब बोलता है कि let's say these are the 2 points across which we want to find the equivalent capacitance. Okay, say this is A, this is B. पहला स्टेप, ठीक है। क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं देखो। आइडियली तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना होता है, बट उसमें ना काफी कंफ्यूजन होता है। तो आई एम टीचिंग यू अ डिफरेंट मेथड, ठीक है। You identify the plane of symmetry, all the points lying on that plane of symmetry will be equipotential points, and then you solve the circuit. मैं थोड़ा सा उसमें मुझे मजा नहीं आता है, बिकॉज अगर थोड़ा भी सर्किट दाया बाया होता है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो बेटर इज आई एम राइटिंग समथिंग, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स और नोड्स इन द सर्किट which are equidistant from, which are individually equidistant from the terminals, from the points about which, ये सब लिखना छोड़ो, A एंड B लिखो। यही टर्मिनल्स है ना, ठीक है। सी हाउ टू यूज इट। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये ना फिर बाद में नहीं तो दिमाग चलेगा नहीं। फ्रॉम पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए राइट, फ्रॉम पॉइंट ए और टर्मिनल ए, पॉइंट 1, दिस इज इक्विडिस्टेंट। 1 5 and 7 are equidistant, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Individually they are 7 5 and 7 are equidistant, right? So what you will do is write A से point 1 5 और 7। 7 को हटा दो because it belongs to a terminal B, it belongs to terminal B, so 7 is not welcomed. But now check whether these points are equidistant from B also or not. Individual equidistant, so they are at the face diagonal. See, yes or no? Both 1 and 5 are at face diagonal, yes or no? Yes, sir. Yes, All the sir. capacitance are of equal capacity, है ना। ये तभी होगा, तब नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो अब ये आया मेरे प्यारे बच्चों, बी से 1 और 5 दोनों सेम पोटेंशियल पे हो गए। क्लियर? So even 3, right? Yes, sir. सॉरी, Even 3, right? बट it was not with A. It was not equidistant with 1 and 5. So wait, they have Only to be those set of equidistant. points, एक second. Only those set of points we have to check which are equidistant from A also. Oh, okay, from both A and B. हाँ, but they Okay. can be individually equidistant because the distance of A 1 5 and 7 is different from what B is distance from 5 and 1, right? Yeah. That is what I mean by individually equidistant. I hope you understood this. Have to be both equidistant with both A and B, हाँ but distances may be different. हाँ. Yeah. Now this is one point. ठीक, अब आ जाओ दूसरा देखो। अब ए से देखो दूसरा सेट ऑफ पॉइंट्स, तो 1 5 7 तो हटा दो यहां से तुम लोग। अब देखो क्या क्या होगा यहाँ पे। 1 से 2, सॉरी 6 से 2, 6 से 2, 6 और से eight. 8, 6 से 4। बोलो हाँ या ना। So this is the set हाँ, which sir. we got from here, right?
कौन कौन सा है? 2, 4 और 8। चेक करो बी से भी है क्या? सर 4 नहीं होगा पीछे। 7 से 2, 7 से 8 तो हुआ, पर 4 नहीं हो रहा है ना? तो 4 को उड़ा दो हाँ यहां से, 4 इज गॉन। बोलो भाई प्यारे बच्चों, समझ आया नहीं आया? सो 2 and 8 have yes, हाँ सर। equipotential. 2 and 8 are equipotential points. This method you can deploy in any three-dimensional figure जहां तुम्हें प्लेनर सिमेट्री भी नहीं मिल रही होगी, वहां पे भी किसी में भी यूज करो चलेगा। अब देखो बचा कौन? 3 और बचा कौन? 3 और 4, ये अलग अलग इसका पोटेंशियल रहेगा। So now see how many different equipotential points are there, or different potential points are there. A has a different potential, B has a different potential, 1, 5 has common potential, 2, 8 have common potential, so 4 points. Fifth one is 4 and sixth one is 3. Got it? All these points have different potentials. बोलो रे बच्चों हाँ या ना? हाँ yes, सर। सर आप फिर से समझाएंगे? क्या 1, 5, 2, 8 ये सब बताऊं कि आगे बताऊं? 1528। अच्छा, तुम कहाँ चली गई थी? नहीं सर, वो थोड़ा इंटरनेट खराब है तो इसीलिए ब्रेक ब्रेक हो हाँ रहा तभी था। मैं, नहीं तो ऐसा कुछ था नहीं, समझ नहीं पाती। चल देख इधर ध्यान से, हाँ तुमने ये सर, सुना था निकालना क्या है? इक्विपोटेंशियल नोड्स निकालना था। हाँ हाँ हाँ, इंडिविजुअल इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। सो ए से यू चेक, ए से विच आर द इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स? फर्स्ट 6 से, मतलब सॉरी 6 से इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 1, 1, हाँ, 5, 5, 7। 7, हाँ, पर 7 जो है वो ऑलरेडी बी के साथ लगा हुआ है, इसलिए वो टर्मिनल का पॉइंट है, उसको गिनेंगे नहीं। सो 1, 5 हो गया, ठीक है। हाँ, अब बी से चेक करिए इक्विडिस्टेंट है या नहीं है। 7 से, मतलब 7 से 1 है, 10 से 1, 7 से 5 भी है फेस डायगोनल, हाँ, तो ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए। ओके, हाँ, यही काम करना है आगे के लिए भी। टू ओके फोर सर, एट सो ए से 2, 4, 8 है इक्विपोटेंशियल, देखो 2, 4 एंड 8, ठीक है। पर हाँ, 7 से 2 और 8 तो है, पर 4 नहीं है, तो 4 को हटा दो। मतलब when we're taking diagonal it has to be like a right triangle। नहीं 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 नहीं, अरे डिस्टेंस देखना है बेटा, क्यूब में है ना, ये क्यूबॉइड क्यूब है ना ये, हाँ सर, तो डिस्टेंस देखना है यहां से वहां तक। ओके सर, हाँ, 2, 2, 4 and 8 are on the face diagonal, sitting on the face diagonal vertex, हाँ, yes or no? yeah, But from 7, 2 and 8 are edge lengths, but 7 to 4 is body diagonal, so that is not counted now. okay, if we had to take 2, 8 and 5। नहीं नहीं, why 2, 8 and 5? You cannot take 2, 8 and 5. 5 is not with A ना? हाँ हाँ, yes sir, got it sir। हम्म। अब देखो इसमें क्या आएगा, ये सब हटा दो, अब इसको रीड्रॉ करना है। देखो बच्चों सिंपल है, मतलब इसमें देखो अब कुछ नहीं बचता है इसमें। वी हैव दिस ए, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन, वी हैव दिस ए। ए के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है भाई? ए के साथ 1 और 5 है ना, तो ए के साथ 1, 5, बी के साथ भी 1, 5 का कॉमन है क्या? नहीं है, तो 1 और 5 ए के साथ है, ठीक है। तो इसको यहां ले आओ, ये हो गया 1 और 5, यहां हो गया ए के साथ। नाउ वेयर इज बी? बी इज हियर, राइट? नाउ बी इज कनेक्टेड टू व्हाट? 7 is connected to 2 and 8. So 7 is connected to 2 and 8 only. This is 7 and this is 6. ठीक है। Now 1, then there are two different points again, 3 and 4. So 3 and 4 are connected to what? 4 is connected to 1, 5, 3, right? कुछ घपला कर दिया मैंने इसमें, लग रहा है मुझे।
ठीक कर रहा था मैं। देखो ये 1 5 है, ये 2 8 है। नाउ 1 and 5 आर कनेक्टेड टू 2 and 8 ऑल्सो, यस और नो? एंड 3 इज कनेक्टेड टू व्हाट? 3 is connected to 8 and 2, and 4 is connected to 1 and 5. चेक करो, दिखा नहीं दिखा? हेलो? सर ये नहीं समझा। तुम्हें पॉइंट्स को प्लेस करना है, ठीक है? हाँ। ये सारे पॉइंट्स को मैंने प्लेस किया। प्लेसिंग ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसिंग। अगर तुमने दाया बायां कर दिया तो कचरा हो जाएगा। देखो 6 और ए के साथ कौन कनेक्टेड है? 1 और 5 है या नहीं है डायरेक्ट कनेक्शन? तो उसको हाँ उसके सर। पास में रखो, ठीक है? सबसे पहले तुम ये बाहर वाले पॉइंट्स बना लो, ए और बी। ऑल ऑफ यू सी दिस, मेक दिस बाहर वाला पॉइंट्स फर्स्ट। तो ये ए, ये 6 और ए हो गया, ये बी और 7 हो गया, राइट? अब बताओ 1 और 5 किसके साथ कनेक्टेड है? 1 और 5 कनेक्टेड है किसके साथ? ए और 6 के सिक्स। साथ, हाँ। ऐसे ही 2 और 8 किसके साथ कनेक्टेड है? बी और 7 के साथ। और 2 and 8 1 5 के साथ कनेक्टेड है, क्या है? फिर अगला पोटेंशियल किसका था? 4 का था। तो देखो 4 कनेक्टेड है 1 5 के साथ, 3 कनेक्टेड है 2 8 के साथ, और 3 और 4 भी आपस में कनेक्टेड है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू ड्रॉ इट। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब कैपेसिटर लगाना है यहाँ पर, ये असली काम है। ये पोटेंशियल बन गया ना, ये पॉइंट्स बन गया, तो सब काम आसान हो जाता है। देर आर टू कैपेसिटर्स बिटवीन 6 and 1 and 6 and 5, so this is 2C, yes or no? Yes. यस सर। Similarly between 2 and 7, 8 and 7, there are two capacitors, so this is 2C. भाई बाकियों को समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई हाँ ना नहीं बोल रहा है, क्यों ऐसा? शरण्या, मुक्ता, अंजलि, आयुषी, पवन, प्रणव, निशांत, सानवी, समीक्षा, Got ईशानी it. पांडे, श्रीजा दास, श्रीजा दास। यस सर। यस समझ सर। आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। हम्म। तो ये हो गया 2 and 8 का पॉइंट, ये था 1 और 5 का पॉइंट, उनके बीच में आ गया 2C, ठीक है? अब चेक करो यहाँ पे, 5 से 8 में एक कैपेसिटर आ गया, तो बना दो एक यहाँ पर। और 2 से 5 के बीच में नहीं, 2 से 1 के बीच में भी एक कैपेसिटर आ गया, ये वाला। तो यहाँ पे भी दो कैपेसिटर है, तो सी और सी मिला के फिर 2C हो गया ये, ठीक है? सब ध्यान से देखना बेटा। अब 1 5 4 5, इसके बीच में दो है क्या? हाँ है, तो ये दो हो गए। अगेन दिस इज 2C। 2 3 8 3, अगेन इट इज 2C। 3 4, it is C. Now check how many capacitors you have already collected. इसको ना कुछ और कलर से लिख देता हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ, ये था तुम्हारा 1 5 और ये था तुम्हारा 2 8। So how many capacitors are done? दो, दो 11। 4, दो 6, दो 8, दो 10 और ये 11। 11 capacitors are done, right? One is left. Which one is left? The one between 6 and 7. Check. अब ये बताओ, अब ये इजीली तुमको सीरीज पैरेलल दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? हेलो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, आसान है ये करना। Yes, sir. चलो ऑल ऑफ यू यस डू सर। बिटवीन, फाइंड बिटवीन 6 and 2 करो। Copy this, do the same with 6 and 2, and please do it quickly. 3, चलो 4 5 मिनट ले लो, करो जल्दी से इसको।
हाँ भाई, कुछ आया आंसर वांसर की नहीं? कोई आंसर नहीं बता रहा है, कैसे बच्चे हो तुम लोग? सर। सब सो गए? नहीं सर। हाँ तो बोलिए। एक तो सब कैमरा बंद करके पता नहीं क्या करते रहते हो तुम लोग, क्यों कैमरा बंद कर देते हो बे? बोलिए ना शरण्या बलवीर जी, बताइए। सर इसमें 1 और 7 और 8 और 4 दोनों से सेम ही डिस्टेंस पे दिख-। हाँ तो होंगे, लिखो, उसमें क्या है? सर वही नहीं समझ में आ रहा है कि डरने फिर का अब नहीं आगे है, ड्रॉ सुनो कैसे सुनो, करें। नियम जो है ना, नियम मोदी जी टाइप नियम फॉलो करने का है। ठीक है, कोई नहीं डरने का। सरकार जाती हो चली जाए, आज जाए, कल जानी हो आज जाए। देखो इधर आओ, कौन कौन था अपना? A1 और 2 था ना, ये हटा दो इसको यहां से। ये आ गया अपना 2। बार तू तसल्ली तो दिला दे करार। चलो देखो बच्चों, कौन बता रहा है मुझे? चलो शरण्या बलवीर, लाइव पहले तो लाइट ऑन करो, वीडियो चलाओ जरा अपना। अब देखो, अब ठीक लगेगा ना बात करने में। चलो बताओ, ए से कौन कौन इक्विडिस्टेंट है, जल्दी से। सर ए से है 7 और 1। जोर से बोलो, जोर से। 7 और 1। 7, 1 और 5, 5 भी तो है ना? हाँ लेकिन वो बी से नहीं है ना। अरे पहले जो सवाल मैं पूछूंगा वही बताओगी ना आंसर। चलो 1, 5, 7, क्या 2 से भी है? चेक। नहीं। 2 से 7 है पर 5 नहीं है, तो हटा दो इसको यहां से। ठीक है, तो अपने पास 1 और 7 आ गया, बहुत बढ़िया बात है। तो 5 हटा देने का, ये हो गया हमारा बी। ठीक। अब ए से देखो और बाकियों का क्या। तो अब आया तुम्हारे पास 8, 4, हाँ या ना? हाँ सर। बी से भी है, देखो बराबर बराबर है ना, फेस डायगोनल, यस और नो? हाँ सर। तो 4 और 8 भी आ गया, सिंपल। बोलो हाँ या ना जल्दी से। यस सर। यस तो सर। अपना ये वाला पार्ट खत्म। अब कौन बचा? 5 और 3 बचे हैं, तो अलग अलग पोटेंशियल बनाएंगे, उसमें क्या डरना क्या? विल मेक देम एज 2 डिफरेंट पोटेंशियल पॉइंट्स, राइट? सो नाउ यस। redraw it. Let's redraw it. So we have 6, we have B नहीं 2 है, ये 2। इसमें एक जगह फंसोगे तुम लोग, वो कोई बात नहीं, फंसोगे तो भी क्या है, निकलना भी सीखना है। 1, 4, नहीं 1, 4 नहीं, 1, 5, 1, 5 भी नहीं है, 1, 7 इज 1, 7। बिटवीन 2 एंड, ये इसके साथ ए था, इसके साथ बी था, तो 2 और 6 के बीच में 1 और 7 है। 4 और 8 किसके साथ है भाई? 1 और 7 के साथ है, तो 4, 8 इसके नीचे बना दो। 5 किसके साथ लगा हुआ है? 6 के साथ, तो 5 इसके नीचे। और 3 किसके साथ लगा हुआ है? B और 2 के साथ। ये बी है, बी फॉर बॉम्बे। ठीक। ये सर्किट ये बना कि नहीं बना तुम लोग का पॉइंट पोटेंशियल वाला? जल्दी बताओ हाँ या ना। सर यही नहीं बन रहा था। अब बताओ। सर मेरा भी नहीं बन रहा था। अरे तो ये तो तुम्हारे मतलब वही। सामने बनाया मैंने, क्या रॉकेट साइंस है ये? सर मतलब वो 1 और 7 और 4 और 8 कैसे प्लॉट करना वही नहीं समझ में आ रहा अरे था। सुनो सुनो सुनो, सिंपल है, जो जो जिससे कनेक्टेड है उसके नीचे बना देने का, उसको उसके बाजू में या नीचे। ये 2 4 बार प्रैक्टिस के बाद आ जाता है, बट ये चमकता है भाई, ऐसा नहीं है कि ये नहीं चमकेगा, आ जाएगा, आ जाएगा। कोई और, किसी और को समस्या हो रही है? बताओ विवान केसरवानी जी, आप तो ये सब पढ़ चुके हैं क्या? नहीं सर। है? नहीं पढ़ा तूने अभी तक? पढ़ाया नहीं क्या कैपेसिटर? नहीं सर, अभी तो वर्क अच्छा, पर एनर्जी आज खत्म हुआ। तो 11वीं, तुम 12वीं में आ चुके हो ना? हाँ तुमने सर बोला उस दिन बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दिया इन लोग। अच्छा तो एचएससी में है, यस यस, ठीक है।
तो ये हो गया, दो यहाँ कनेक्टेड है तो ये 2C हो गया, दो यहाँ कनेक्टेड है तो ये भी 2C हो जाएगा। इसको कालू कर लेते हैं, रुको। एक बार तो तुझसे दूर। देखो, अब आपको निकालना था इनके बीच में, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक होता है व्हीटस्टोन नाम का ब्रिज, एक होता है सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। ये क्या होता है सीखो। जब भी सर्किट में तुम्हारे पास ऐसे, यहां पे एक एलिमेंट है, यहां पे, अरे नहीं ऐसे नहीं, डीसी, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, छी छी, चलो सीधे इज्जत से बनाता हूं, देखो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और यहां पर एक और लगा दो। अब ये कैपेसिटर की जगह ना कुछ और भी हो सकता है, रेजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। सुन रहे हो मेरी बात कि नहीं? जरूरी नहीं है यस सर। कैपेसिटर हो, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, ये पॉइंट मान लो सी है, और ये पॉइंट मान लो डी है, ठीक है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। तो अब देखो कंडीशन क्या है। कंडीशन कहता है इफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, ठीक है, देन सी एंड डी आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। एक बार तो ठीक है। हेलो, यस सर। क्लियर है Yes. सबको? यस सर। Yes, बस, sir. खत्म। तो जब इक्वी पोटेंशियल होगा तो क्या होगा? ये गायब हो जाएगा यहां से। अब बताओ क्या बचा? ये सीरीज, ये सीरीज, है ना। यस तो सर। पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ऊपर वाला आ गया, अगर कैपेसिटर है तो पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, प्लस नीचे वाला क्या हो गया? आर एस अपॉन आर प्लस एस, यही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। बोलो हाँ सब लोग। हाँ हाँ सर। समीक्षा दास चौधरी जी, आयुषी सिंह, Yes, मुक्ता sir. Yes, क्षीरसागर, sir. प्रणव आर, मनस्वी श्रीकांत, Yes. बताएं। हाँ सर। शाबाश। तो अब इधर आ जाओ जरा, इसको देखो। इसमें ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में कितना हो गया? 2C/3, ठीक। अब देखो 2C/2C, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। देखो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, यस और नो? यस सर। ये गायब, ये गायब, ये भी गायब। अब देखो कितना सुंदर दिख रहा है ये दोनों मिला दोगे तो C, और ये दोनों मिला दोगे तो C/3, है कि नहीं? ले आओ। Yes, sir. और वो दोनों पैरेलल, तो C प्लस C/3, ये हो गया प्यारे बच्चों 4C/3। Yes. हो गया, छापो। बाकी अगली बार मिलते हैं, ठीक है। मैं तुम लोगों से एक बात बोल रहा था, कितने लोग ईमानदारी से टेस्ट लिख रहे हो? सच सच बताना। कोई नहीं लिख रहा है ना? और ये बहुत गलत बात है। एक चैप्टर खत्म करते हो, कम से कम उसका कुछ तो टेस्ट लिखो। तुम, यू आर स्किपिंग द प्रोसेस, प्लीज डोंट स्किप इट। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारे पास टाइम तो है, पर अगर इस प्रोसेस में बने नहीं रहोगे ना, टेस्ट
चलो मैं तुमको ये भी अलाउ करता हूं, एक हर हफ्ते लिखना है, यहां का लिखो कहीं और का लिखो, पर लिखो जरूर। टेस्ट एक प्रोसेस है, टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यू शुड ऑलवेज बी ऑन अ टेस्टिंग मोड। देखो मैं पॉलिटिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करना सुनना, तुम भाजपा बीजेपी वर्सेस अदर पार्टीज उठा लो, दे आर ऑलवेज इन इलेक्शन मोड। तुम योगी जी को देखो, वो सोता रहे वो आदमी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में 75 असेंबली एड्रेसेस, 75 पब्लिक गैदरिंग्स को एड्रेस किया उन्होंने, 75। सोचो कॉरपोरेशन लेवल का चुनाव। तो ये तुम इन लोगों से ना मोटिवेट हुआ करो। मैं सच बता रहा हूं, मेरे यहाँ दो लोग हैं जिनसे मोटिवेट होता हूँ भयंकर में, एक मोदी जी और दूसरे मेरे यहाँ आंटी आती है काम करने के लिए, वो ये दोनों सुबह 5 बजे उठते हैं। आंटी जो है मेरी, जो काम करती रहती हैं, शी वर्क्स टिल शी ड्रॉप्स, मतलब 8-9 बजे बोलती हैं, यहाँ से जब जाती हैं 6:30 व्हेन शी लीव्स। मतलब वो सब मल्टीपल घरों में काम करती हैं वो, शी इज अ हाउस डोमेस्टिक हेल्प। तो वो जब घर जाती हैं तो घर जाके खाना बनाती हैं पहले अपने परिवार के लिए, उसके बाद वो फाइनली सोती हैं, और सुबह फिर 5 बजे से उनका चालू हो जाता है, 4-4:30 बजे उठती हैं पानी वानी भरने के लिए। तुम मेहनत और क्वालिटी ऑफ वर्क विच शी डज, और मतलब मैं मोदी जी से कंपेयर नहीं कर, मैं बोल रहा हूँ मेहनत जो है ना, तुम कहाँ से डिराइव करो, मोदी जी दूर हो गए, ये पास में। तो मुझे शर्म आती है कि हम लोग जब बोलते हैं ना कि अरे भाई अभी बहुत काम कर लिया, तो फिर मैं उनको देखता हूँ, ये देखो एक ये महिला है, शी इज 63 years old, 63 साल की महिला है वो, 63 years old। जब वो फाइनली घर से निकलती है ना, हमारे शाम की आखिरी चाय पी के जब इधर से, तुम चेहरे पे, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग। पैर टूट गया था तो, हाथ टूट गया था तो, शी इज ऑलवेज, अच्छा छुट्टी उट्टी कोई छुट्टी नहीं मारती है, बोलती जाना होता है तो बोलती है, हम उनसे कहते हैं ना कि आप हफ्ते की एक छुट्टी लो, बोले नहीं मुझे जब लेना होगा मैं बता दूंगी। तो मैं तुमको ये बता रहा हूं कि देखो मेहनत, जब तुम्हें लगे ना तुम मेहनत कर रहे हो, तो एक तो ये इनको याद कर लेना, या आजू बाजू देखो ऐसा कोई जीवित प्राणी है क्या तुम्हारे। और सच बता, और अगर तुम्हें नहीं कुछ समझ आए तो मोदी जी को देख लो, आज सुबह कर्नाटका में रहेंगे, कल उसी समय राजस्थान में रहते हैं, मतलब ऑन द गो। वो बुढ़ा आदमी, ही इज हाउ ओल्ड बताओ, 68 years old, 70 69 years old, 70 नाउ, 70+ हो गए शायद वो, 73 है ना। हाँ 75 साल में तो रिटायर yes होने वाले रहते हैं भाजपा से, 73 years old, इमेजिन। और वो जब वेन ही वॉक्स, वो साला सब आजू बाजू वाला फेल रहता है, जो बिडेन इडेन ये सब पानी भरता है, तो खैर जो बिडेन तो बहुत एज हो गई उसकी, बट सी द रेस्ट ऑफ देम ऑल्सो ना, एक्सेप्ट फॉर पुतिन, शी जिनपिंग भी इज गुड इन हेल्थ। तो मेरा यही कहना है, देखो सब ये सब बातें अच्छी लगती हैं, बट मेरा ये कहना है काम करो, कोई फालतू बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ इस धरती पे, ये याद रखो, जिस दिन से पैदा होते हो ना उस दिन से तुम्हें काम पे लगना होता है, ठीक है, एंड यू आर हियर टू वर्क ओनली, सो मेक योर सेल्फ यूजफुल, ठीक है, डू सम वर्क, और जो तुम्हारा काम है वो तो जरूर करो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो ये, तो प्लीज टेक टेस्ट, हफ्ते में नियम बना लो, एक टेस्ट जाके जरूर लिखना है, पेपर कम पड़े पूछो, मैं बताऊंगा तुम्हें पेपर कम पड़ेगा तो, पर लिखो, समझ आया नहीं आया बे सबको। एनटीए की Yes, sir. वेबसाइट जानते हो कि नहीं जानते हो, अभ्यास हाँ जानते हो, एनटीए की वेबसाइट, उसपे sir. पूरी दुनिया का वो Yes, पड़ा sir. हुआ है, सैंपल पेपर, सॉरी वो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जिस दिन तुम्हें गलत फहमी हो जाए कि हमको बहुत आता है, एक जाग पेपर लिख लेना, अपने आप औकात समझ में आ जाएगी कि वेयर डू यू स्टैंड, है ना। ये करते रहना चाहिए, आदमी को हमेशा नया चैलेंज लेते रहना चाहिए, दैट्स हाउ यू ग्रो, दैट्स हाउ यू मूव अहेड, दैट्स हाउ यू लर्न न्यू थिंग्स, अंडरस्टूड और नॉट।
When I started this mode of teaching, this workshop, and after this numerical solving and all, people told me that there are so many people in the market, nobody will pay you this much amount of money. मैंने कहा तुम चलो जाओ आगे, हम कर लेंगे. कहा वो फिजिक्स वाला फ्री में पढ़ाता है, ये पढ़ाता है. मैंने कहा बे देयर आर ऑलवेज टेकर्स फॉर एवरी प्रोडक्ट. ठीक है. You will be surprised to know this. I have launched a product. मतलब अभी I have launched 3.5 lakh rupees for 2 years. Fees 15 students. I got 10 for this year. तो मैं ये तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूं. देखो अपने आप को पुश करो. नया सीखोगे तुम लोग. समझ आया भी नहीं आया? Yes. जागो. और मोदी जी तुम्हारा रोल मॉडल होना चाहिए काम करने में. समझ आया नहीं आया? अपने आप को सोचो 73 साल की उम्र में वैसे काम कर सकते हो क्या 73 इयर्स में? तब तो भारत का युवा वर्ग तैयार हो रहा है भाई. तब तो गोल्डन एरा है. नहीं तो फिर क्या है? पाकिस्तान बनते देर नहीं लगेगी इसको. समझे कि नहीं समझे? चलो आज के लिए इतना ही. ज्ञान प्रवचन बंद. मजे करो जाओ. बाय. Thank you, sir. Right. मोस्ट वेलकम. Thank you, sir.